Please unmute all the students. Now is it okay? Yes, ma'am. Now it Yes, is okay. ma'am. Okay, fine. Okay, हाँ. So now next topic, that is zygote convert into कहाँ चल रहे थे हम लोग? Embryo. Wait, I want to see screen. So now what happened here? This embryo which is developed at what end? Micropylar end. So micropylar end of क्या लिखा है? Embryo sac. So you should know where the micropylar end is present. तो हमने anatropous ovule का diagram लिया था. तो anatropous ovule के diagram में यहाँ पे lower end is called as a micropylar end. तो इस micropylar end के पास development of what is takes place? Embryo is takes place. And this embryo developed from whom? From the zygote. So now this embryo formation is triggered by certain amount of endosperm formation. So actually हमने last lecture में पढ़ा था what is endosperm. That endosperm is of three types. That is nuclear endosperm, cellular endosperm, and halogeal endosperm. So it is trigger means what? Trigger का मतलब क्या बोलेंगे? Activation, stimulation. So stimulation is done by formation of what? Formation of endosperm. So zygote by first mitosis form a two-cell structure. That two-cell structure is called as a proembryo. So zygote जब first mitosis दिखाएगा. So what is meaning of mitosis? One single cell. That one single cell is form of two-cell proembryo. So only two cell को उन्होंने नाम दिया कि in future ये cell embryo में convert होने वाली है. So this is called as a proembryo. So देखो ये unicellular zygote है. That is called as the oospore. And this oospore zygote on first mitosis, यहाँ पे first division हो गया mitosis का, and it forms the two cell structure, that is embryonal. तो यहाँ पे मैं क्या अभी already हम लोगों का सस्पेंसर सेल फॉर्म हो गया है, तो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ. that is embryonal cell जो initial है zygote, that divide into how many cell? Two cell. तो यहाँ पे that two cell structure is called as a proembryo. The larger cell towards the micropyle is called as a basal and suspensor cell, and smaller cell towards the chalaza is called as the terminal or embryonal cell. तो जो कहाँ पे आई? फिर से देखो, large cell towards the micropyle. तो एक large cell एक small cell है. तो cell which is large towards the micropylar, ये micropyle की है. So this is called as a suspensor or initial. कहा हम लोगों ने चलाजा. That चलाजा मतलब ये बेस. तो ये चलाजा की तरफ जो स्मॉलर सेल है, that smaller cell is called as a, that is called as the embryonal cell. ये फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगी. So what happened here? The larger cell towards the micropyle is called as the basal or suspensor cell, and smaller cell towards the chalaza is called as the terminal or embryonal cell. Now this suspensor cell divide very mitotically. Many divisions takes place to produce how many cells? 6 to 10 cells. The first cell towards the micropylar end become hypophysis. तो मैं यही पे डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज ये एक लार्जर सेल है, नेम दैट इज कॉल्ड एज अ zygote. इसको हमने कितने में डिवाइड किया? दो में डिवाइड किया. एक क्या हुआ? लार्जर सेल. एक क्या हुआ? स्मॉलर सेल. अब ये जो स्मॉलर सेल है, दैट स्मॉलर सेल इज कन्वर्टेड इनटू कहाँ हो जाएगी? इनटू फ्यूचर एम्ब्रियो. लेकिन ये जो सेल है which divides suppose 3 times, तो 3 times होगी तो 1 divided into 2, 2 divided into 4, 4 divided into 8. तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गए. नीचे भी और 4 आ जाएंगे, 5 6 7 and 8. सपोज ये 8 सेल हो गई. आउट ऑफ 8, वन विच इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो को क्लोजर है, दैट बिकम एक्ट एज अ हाइपोफाइसिस, एंड दैट हाइपोफाइसिस एक्ट एज अ होस्टोरियम एंड सस्पेंसर. ये पूरा का पूरा 8 सेल का स्टॉक इसे लेगा ऊपर, मतलब किसकी तरफ डालेगा? एंडोस्पर्म की तरफ. अब ये न्यूसेलस है, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है बताओ? न्यूसेलस के एरिया में, अपर एरिया में एम्ब्रियो सैक के द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म. तो उस एंडोस्पर्म के अंदर उसे पुश करेगा. किसे पुश करेगा? एम्ब्रियो को. नाउ व्हाट हैपन? दैट एम्ब्रियोनल सेल व्हिच इज सिंगल सेल, ये बहुत जन बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता. द एम्ब्रियोनल सेल which undergoes 3 successive mitotic division.
उन्होंने क्या कहा है, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म एन ऑक्टेंट। तो मैं कोशिश करती हूँ 3 फ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन कैसे ऑक्टेंट बनाता है, मैं ट्राई करती हूँ। देखो अगर आपको समझ में आया है वहां तो, सपोज ये प्लेट है, तो ये इसके ऊपर ये हम लोग मॉडल के फॉर्म में किसे यूज कर रहे हैं, सपोज टोमेटो वैरायटी को। तो ये पहला माइटोसिस हो गया, दिस इज फर्स्ट माइटोसिस। सो व्हाट हैपन इन फर्स्ट माइटोसिस, हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, 2 cells are produced. So now next second mitosis. तो इन सेकेंड माइटोसिस हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पे कितने सेल्स हो गए देखो, 1 2 3 4। अब ये 4 सेल में से फिर से सेकेंड माइटोसिस इज ओवर, अब फिर से मैं इसे कट करूंगी, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताओ, और कट करेंगे तो अपर 4। तो यहाँ पे यहाँ का नहीं, नीचे का दिखा देती हूँ तो मुझे पकड़ने में इजी जाएगा। आया, तो ये 1 2 3 4, दैट 4 सेल्स फॉर्म अ लोअर टायर। ये 4 सेल ने क्या फॉर्म किया है बताओ, लोअर टायर फॉर्मेशन, दिख रहा है आपको। और ऊपर ऊपर भी 4 सेल रहेंगे। सो टोटल हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस, 8 सेल्स आर प्रोड्यूस। एंड हाउ मेनी डिवीजन आर टेक प्लेस हियर, ओनली 3 फ्री माइटोटिक डिवीजन। तो 3 फ्री माइटोटिक डिवीजन में क्या होगा देखो, so what happen here, the embryolal cell which undergoes the 3 successive mitotic division. कितने सक्सेसिव डिवीजन हो गए, 3 डिवीजन टू फॉर्म एन ऑक्टेंट। और ऑक्टेंट, ऑक्टेंट मतलब समझ में आया, ऊपर के लेयर पे कितने रह जाएंगे, 4 1 2 3 4 एंड लोअर 4। सो हियर द प्लेन ऑफ डिवीजन आर राइट एंगल टू ईच अदर। तो मैंने वो दोनों राइट एंगल भी दिखा है। फर्स्ट हम लोगों ने ट्रांसवर्स कट किया, और पहला जो है दैट इज राइट एंगल टू सेकेंड। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करेंगे, तो ये हो गया राइट एंगल। सपोज ये पेन है, और फिर सपोज ये पेन है, ये एक वर्टिकल डिवीजन और ये एक वर्टिकल, तो इस तरह से दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ऐसे राइट एंगल टू ईच अदर एंड the plane of division are at right angles to each other. So now lower tier of 4 cells of octant form the radical. जो नीचे के 4 सेल्स थे वो 4 सेल्स कैसे डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म व्हाट शेप, व्हाट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज द रेडिकल। दिस रेडिकल इज कन्वर्टेड इनटू रूट। ये रेडिकल फ्यूचर में कहाँ पे कन्वर्ट होगा, रूट। तो आपको समझ में आ रहा है, एम्ब्रियो मतलब इनडायरेक्टली हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, अंदर वाला पार्ट जो मेन 3 पार्ट से बना रहेगा। वन दैट इज कॉल्ड एज अ रूट, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ शूट, दूसरा है शूट, एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज ए कॉटिलेडॉन। क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉटिलेडॉन। ये तीनों को बनाना इज कॉल्ड एज ए एम्ब्रियो, और इन तीनों को प्रोटेक्ट करने वाले पार्ट को नाम दिया एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इन अ कोट दैट इज कॉल्ड एज अ सीड कोट। So now 3 parts combine with each other to form an entire miniature plant, and that miniature plant is called as the seed. उससे क्या नाम दिया है, seed। तो मेन तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ये 4 सेल्स ऑक्टेंट कैसे हो गया। तो ऑक्टेंट में से जो नीचे 4 सेल्स है वो डिवाइड रीडिवाइड होते जाएंगे, और उससे क्या फॉर्म होगा, रेडिकल। एंड वेयर हैज द 4 सेल्स ऑफ अपर टायर, जो अपर 4 सेल्स थी, that form the structure that is called as a plumule. That plumule is converted into कहाँ होगा, shoot, and 1 or 2 cotyledons। और उसमें कितने cotyledons बनेंगे, 1 or 2 cotyledons। So now upper tier divide in several steps। जो ऊपर के 4 cells थी वो divide into several steps that become heart shape, which then forms a 2 lateral cotyledon and terminal plumule। तो देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक के डायग्राम को भी फॉलो किया है। ये उस पर हुआ, ये 2 सेल्स हुए, फिर नीचे के 2 सेल्स से एक सेल सस्पेंसर हुआ, वो पुशिंग करता जाएगा, इसे पुश करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियोनल सेल। यहाँ पे बुक में डायरेक्ट 4 सेल्स मतलब जो 8 दिखाई है उसको मैंने ऑक्टेंट के फॉर्म में ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 अपवर्ड, 1 2 3 4 लोअर। ये 4 जो लोअर आ गए उसमें से ये सस्पेंसर ऑलरेडी था अपना हाइपोफाइसिस। जो लोअर सेल्स है वो क्या फॉर्म करेंगे, रेडिकल। लोअर 4 जो है ऑक्टेंट में से दैट फॉर्म्स द रेडिकल, एंड अपर 4 डिवाइड एंड रीडिवाइड, डिवाइड एंड रीडिवाइड to form the structure that is called as a plumule and proton. Now plumule is connected by portion, that portion is called as a hypocotyl, and radical is connected by, that is मतलब यहाँ पे जो आएगा that is called as a epicotyl।
तो रेडिकल जिससे कनेक्ट होगा दैट इज इंटी, मतलब लोअर, एंड प्लीन्यूल जिससे कनेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोकॉर्टिल। सी द टेक्स्ट बुक डायग्राम ऑल्सो, अगर आप टेक्स्ट बुक के डायग्राम को देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन ये उल्टा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। ये एम्ब्रियोनल सेल फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट जाइगोट, दैट जाइगोट डिवाइड इनटू टू, जाइगोट डिवाइड हो गया, फिर उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे फोर्सेस, दैट इज ऑक्टेंट फॉर्मेशन। सो आफ्टर ऑक्टेंट फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ क्या हो रहा है, एम्ब्रियो। तो यहाँ पे ये डायग्राम है अंदर की ऑक्टेंट फॉर्मेशन, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। ये बाहर वाला कोट है दैट इज कॉल्ड एज द इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, और ये डॉट 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 जो दिखा रहे हैं वो उसकी सेल्स से। फिर उसके बाद ये व्हाइट फुल पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज, हमने क्या कहा उसे, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म। यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ देखो, ये है सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल का स्टॉक बना, and that stalk is converted into embryo, and now this embryo show the shape, that shape is called as a hard shape। यहाँ पे ये कन्वर्ट कहाँ पे हो गया, हार्ड शेप में। नाउ दिस हार्ड शेप ग्रोज, ऐसा नीचे नीचे और ग्रोज होता जाएगा ना, तो ये ऐसा पोर्शन दिखाएगा, ये जो नॉच है इसे मैं अंदर ड्रॉ करूंगी तो दिखाएगा, जैसे हम क्या कहते हैं हॉर्स शू शेप, तो यहाँ पे वही डायग्राम है। तो यहाँ पे हॉर्स शू शेप कैसे बन रहा है देखो, दिखा रहा है, ये है एंडोस्पर्म, उसके अंदर ये धीरे 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 पुश होता जा रहा है। तो ये दो लाइन यहाँ पे दिख रही है, दैट इज शोइंग व्हाट, कॉटिलेडॉन फॉर्मेशन, दैट इज हॉर्स शू शेप फॉर्मेशन। ये उसका स्टॉक एज इट इज है, और यहाँ पे नीचे दैट इज कॉल्ड एज अ सस्पेंसर। इसे ही इतने ही पोर्शन को बाहर ड्रॉ करके दिखाया है, दैट इज टू कॉटिलेडॉन, लोअर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोकॉटिल, देन कॉल्ड एज अ रेडिकल, रेडिकल कनेक्टिंग पार्ट, एंड देन सस्पेंसर, और नीचे क्या आया बताओ, सस्पेंसर। यही इलॉन्गेट होते होते पूरे सेट में इतना चला गया कि उसका व्हाइट पोर्शन ही गायब हो गया। देखो हम लोगों को क्या नहीं दिख रहा है, एंडोस्पर्म ही नहीं दिख रहा है। सो ऑल एंडोस्पर्म इज ऑक्यूपाइड बाय, किससे हो गया, ऑक्यूपाइड बाय दी डेवलपिंग कॉटिलेडॉन, वो कॉटिलेडॉन ने उसे ऑक्यूपाई किया, मतलब ऑल नरिशमेंट इज एब्सॉर्ब। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, एज इन स्पीसीज का नाम किया है कैप्सुला। सेम लाइक दैट यहाँ पे मोनोकॉट में दिया है, देखो मोनोकॉट में भी ऊस्पोर आया, सस्पेंसर सेल इनिशियल आई, फिर उसके बाद वो ऑक्टन शेप आया, ऑक्टन के बाद ग्लोब्यूलर शेप हो गया, फिर उसमें रेडिकल और क्या हो गए बताओ, प्लिन्यूल फॉर्मेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, तो रेडिकल इज कवर्ड, रेडिकल एंड प्लिन्यूल जो है ना उसे कवर किया जाएगा बाय सिंगल कॉटिलेडॉन। सो हियर ओनली वन डिफरेंस, दैट इज कॉटिलेडॉन इन मोनोकॉट स्पीसीज is called as the scutellum, इसे क्या नाम दिया जाता है, scutellum। तो scutellum के below the shoot portion is present, that is called as the shoot apex। so that shoot apex is protected by coleoptile, उससे किसे प्रोटेक्ट किया है, coleoptile, and radical which is present lower side, radical root है तो lower side जाएगा ना, radical by कोलियोराइजा, तो उसे उन्होंने रूट कैप, एक्चुअली कोलियोराइजा आएगा और फिर बाद में आएगा रूट कैप। तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद क्या रखना है, जो मैंने पॉइंट्स दिए कि वो फॉर्मेशन ऑफ कहाँ तक आएगा बताओ, ऑक्टन के बाद, फिर ऑक्टन के बाद अपर प्लेन व्यू फॉर्मेशन ऑफ क्या कहाँ है, हम लोगों ने प्लिन्यूल एंड कॉटिलेडॉन फॉर्म करेगा, एंड लोअर वन व्यू फॉर्मेशन ऑफ क्या करेगा, रेडिकल। upper tier divided in several steps to become what shape, heart shape, and which then forms the two lateral cotyledon, उससे क्या फॉर्म होंगे, cotyledon, and terminal ending जो आया that is pleniole। This hypophysis is further division give rise to a part of, वो ये hypophysis elongate होते जाएगा and उससे दो main part होंगे, one is radical and second one is root cap। The enlargement of hypophysis, वो जो स्टॉक है वो ग्रो होती गई, and cotyledon result in a curvature like appear, that is called as a horseshoe shape। क्या शेप आया, horseshoe shape embryo। तो ये डायग्राम है horseshoe shape। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बोर्ड में भी ड्रॉ करना है, जैसे वन सिंगल सेल, फिर टू सेल, फिर उसके बाद फोर सेल ऑक्टन के फॉर्म में, फिर उसके बाद ग्लोब्यूलर शेप, और फिर डायरेक्टली आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, दैट इज हॉर्सशू शेप, हॉर्सशू शेप दिखाना, और फिर बाद में यहाँ पे नीचे की पोर्शन में आएगा दैट इज सस्पेंसर, फिर रेडिकल, फिर प्लिन्यूल, और क्या दिखाएंगे आप लोग, कॉटिलेडॉन।
बस इतना ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे और एक पॉइंट क्या है, देखो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सेम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दोनों में भी सेम है, लेकिन टिल व्हाट स्टेज, ऑक्टन स्टेज, बट इन मोनोकॉट सिंगल शील्ड शेप, वहाँ पे कॉटिलेडॉन सिंगल है ना, इसलिए उसका नाम मोनो दिया है, मोनो मतलब सिंगल, कॉट मीन्स कॉटिलेडॉन, तो इन मोनोकॉट सिंगल शेप कॉटिलेडॉन इज प्रेजेंट, दैट सिंगल शील्ड, शील्ड मतलब कोट डाला हुआ है हम लोगों ने, दैट सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज ए स्कूटेलम, उसका नाम है स्कूटेलम। तो यहाँ पे डायग्राम में भी हमने दिखाया है सिंगल शील्ड शेप पार्ट दैट इज कॉल्ड एज ए स्कूटेलम। So now what happened here? The single shell-shaped cotyledon is called scutellum, and protective sheet of plumule is called as a coleoptile. इसके ऊपर plumule के ऊपर जो sheet आएगी that is called as a coleoptile, and protective sheet of radicle is called as a coleorrhiza. तो बेसिकली हम लोगों का चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट हो गया, मतलब कौन सा, रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स। हमने क्या क्या फॉर्मेट किया, अभी सीड फॉर्म हो गया, अब आगे क्या आएगा, फ्रूट फॉर्मेशन। तो ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कहाँ हुआ, सीड, एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू कहाँ हुआ, फ्रूट। अब कंटिन्यू हुआ ना, एक बार सीड मिल गई तो सीड ऑन जर्मिनेशन फिर से क्या दिखाएगी बताओ, फिर से प्लांट दिखाएगी, प्लांट में रूट आएगा, शूट आएगा, फिर फ्लावर आएगा, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम, फिर उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट फिर से क्या होगा बताओ, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, दे ऑल आर इंक्लूड इनटू कहां पे होंगे, सीड, फिर सीड ऑन जर्मिनेशन, एक पूरा लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट हुआ। तो जो मेन टॉपिक था इस चैप्टर में से वो सारे कंप्लीट हो गए। अब ये पीछे के जो टॉपिक है, हाँ यस, हाँ, तो यहाँ पे जो पीछे के जो टॉपिक है दैट इज सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, तो ये सब आपको ओनली के लिए मैं वो एक्सपेक्ट करती हूँ, हो सकता है टाइम कितना है, अभी 5 मिनट में से कंप्लीट करती हूँ। ये लेसन आज कंप्लीट होगा और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मेनली इस 2 टॉपिक में से आप डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये 2 चीज पे ज्यादा ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। तो सीड कंप्लीटली कैसे हो गया, द इंटेगुमेंट, अब बहुत बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है इसमें मुझे लगता है, ओव्यूल का आउटर मोस्ट पार्ट, that outermost part is called as an integument. So now the integument of fertilized ovule persists and get transformed into, it is converted into seed coat. Of what seed? Mature seed. Now seed coat is divided into 2 parts. Outer coat that is called as a testa and inner thin coat is called as a tegmen. अब आपके सामने ना कोई ग्राम सीड लेके आ जाओ, ग्राम सीड से आपको क्लियर हो जाएगा, खाना देखा है, अभी ना सबको अनम्यूट करो प्लीज। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट कोट है दैट इज कॉल्ड एज ए सीड कोट। ग्राम को अगर आपने देखा ब्राउन कलर का कवर आता है तो उसे हम नाम देंगे टेस्टा, और उसी ब्राउन कलर के अंदर पेल ऑफ व्हाइट कलर स्ट्रक्चर आएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज ए टेगमेंट। ये हो गया। फिर जो ग्राम को अपने कोट को निकालने के बाद 2 कॉटिलेडॉन, तो ये कॉटिलेडॉन थिक हो गए, फ्लेशी हो गए, तो इसलिए कॉटिलेडॉन के अंदर एंडोस्पर्म चला गया। So what happened here, in mostly dicot acid endosperm is absent, dicot acid में क्या होगा, एंडोस्पर्म एब्सेंट, बट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट में सपोज ये यहाँ पे डायग्राम दिया है बुक में, सपोज मोनोकॉट में ये इसका है मेज सीड है, तो मेज सीड में देखो आउटर मोस्ट कोट ऑफ द सीड दैट इज कॉल्ड एज द सीड कोट आया। तो सीड कोट के बाद ये जो लेयर दिखा है दैट इज फुल पोर्शन इज कॉल्ड एज द एंडोस्पर्म, एंड लोअर टू दैट यहाँ पे अगर आपने मेज मक्का देखा होगा ना, जो जिसका हम लोग मतलब ग्रेन्स का मतलब फ्लोर बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे डीप नॉच रहती है, तो इस डीप नॉच में ही एम्ब्रियो है, बाकी सारे के सारे पोर्शन में क्या है बताओ, एंडोस्पर्म। सो दिस एम्ब्रियो जो यहाँ एक्सपांड करके बताया, दैट एम्ब्रियो
is showing outermost part that is called as a scutellum. उसने क्या दिखाया बताओ? स्कूटेलम, एक स्कार जैसा पोर्शन. दैट स्कूटेलम के नीचे जो शूट फॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड एज ए प्लीम्यूल, एंड प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कोट दैट इज कॉल्ड एज ए कोलियोथाई. फिर उसके बाद जो सॉइल के अंदर जाएगा दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए रेडिकल, एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा. So what happened here in the single cotyledon monopod species? Only one cotyledon is present, and in dipod species, two cotyledons are present. So mostly all monopod seeds are called as a endospermic. वो seed को क्या कहा जाता है? Endospermic. And dipod seeds are called as a non-endospermic. That is, endosperm is absent. Absent means what? That endosperm is transferred in the cotyledon, and so cotyledon become thick and fleshy. वो cotyledon कैसे हो गए? Thick and fleshy. और वो cotyledon nourishment देंगे किसे? To root and shoot, मतलब developing plant को. So now here the nucellus, हमको अभी ovule का structure clear है. Nucellus persist in the black pepper and in the beet as a thin papery layer, and in the form of papery layer that is called as a perisperm. तो आपको ब्लैक पेपर जो मिल रहा है, तो ब्लैक पेपर जो वैरायटी है उसमें वो परसिस्टेंट है, बाकी स्पीसीज में न्यूसेलस नहीं रहता. एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज ओनली टेक्स प्लेस. इन सम सीड्स फूड रिजर्व इन एंडोस्पर्म आर पार्शियली यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. तो कोई कोई सीड में क्या होता है? सीड डेवलप होती है, जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसी टाइम में एंडोस्पर्म को यूज किया जाता है. इन सम सीड्स, ये नॉलेज ओरिएंटेड है ना, इसलिए उसके ओनली पॉइंट्स पे ध्यान रखो. इन सम सीड्स एंडोस्पर्म रिमेन्स दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्पिक्यूअस, वैसे की वैसे रहेगा, एंड फिल्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ सीड आर कॉल्ड एज ए एंडोस्पर्मिक. तो ये सीड एंडोस्पर्मिक रहेगी कि जिसमें एंडोस्पर्म एज इट इज दिख रहा है हमें. So that seeds are called as endospermic or albuminous. Example is castor, example is coconut, example is maize. Maize seed में अभी हमने डायग्राम में देखा तो उसमें हमें एंडोस्पर्म बड़ा दिख रहा है. In some seeds, endosperm embryo absorbs the food reserved from the endosperm. तो कोई सीड में क्या होता है? एम्ब्रियो फुल नरिशमेंट एब्सॉर्ब करके लेगा. So all embryo absorb the nourishment from endosperm. So here endosperm completely absent. So completely during the development of stages, the endosperm disappear, called as a non-endospermic or exalbuminous. Example is pea, bean, etc. So ये आपको डेवलपमेंट ऑफ किसके बारे में नॉलेज मिल गया? एम्ब्रियो के बारे में. फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय, मैंने बहुत बार आपको बोला ट्रिगर मतलब क्या? इनिशिएटिव, जो किसी और को इंस्पायर करता है कुछ चीज करने के लिए. तो फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड्स. ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? बाय डेवलपिंग सीड. तो अंदर जैसे सीड फॉर्मेशन का मैसेज आया तो बाहर ओवरी से फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा बताओ? फ्रूट. तो अभी आपको क्लियर हो रहा है? सिग्मा पार्ट हो गया क्लियर. सिग्मा के बाद नीचे क्या आया? स्टाइल. स्टाइल के बाद क्या है यहाँ पे? ओवरी. इनसाइड द ओवरी व्हाट इज प्रेजेंट? ओव्यूल. सपोज हम मैंगो को ही कंसीडर करेंगे तो इस मैंगो के ओव्यूल से मैंगो की क्या बनेगी? सीड. और अब ये ओवरी ही इन फ्यूचर क्या बनाएगी बताओ? मैंगो. ये ओवरी क्या बनेगा? मैंगो. तो मैंगो का ये मोस्ट आउटर मोस्ट वॉल दैट इज कॉल्ड एज द ओवरी वॉल. ओवरी वॉल को हमने क्या नाम दिया? दैट इज कॉल्ड एज द फ्रूट वॉल. So here what happened? The fruit development is triggered by hormone that is producing by developing cells. Ovary differentiate into कहाँ पे होती है? Into fruit, and ovary wall develop into outermost coat of fruit that is called as the pericarp. तो ये मैंगो का बाहर वाला ग्रीन जो लेयर आया उसके ग्रीन लेयर को हमने नाम दिया है पेरिकार्प. तो पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर से बना. कौन से 3 लेयर? ये बाहर वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्प जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, बाद में येलो कलर होगा. फिर बीच में जो पल्प है जिसे आप खा रहे हो
दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ए मेसोकार्प। और अंदर जो कार्प क्या बोलते हैं उसको, हम लोग कोई बोलते हैं मराठी में, और इंग्लिश में उसको वही आउटर मोस्ट कोट जो हार्ड रहता है ना, वो आउटर मोस्ट हार्ड सीड कोट दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोकार्प। इससे क्या नाम दिया है, एंडोकार्प। तो यहाँ पे पेरिकार्प 3 में डिवाइड हुआ। कौन से 3 पार्ट आ गए मोस्टली, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। The pericarp is basically 3 layers which differentiate into fleshy fruit So like कहाँ पे, mango, हाँ yes, coconut etc. last 10 minutes to So go. these are okay. This is the main role of formation of क्या है बताओ, seed and fruit. The significance of seed and fruit formation. तो बस इतना ही टॉपिक लेती हूँ मैं थोड़ा सा। तो फ्रूट क्या प्रोवाइड करेगा हम लोगों को, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड। फ्रूट डेवलपिंग सीड को नरिशमेंट देगा, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग को वो फॉर फूड पर्पस यूज होगा। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन व्हाट कंडीशन, इमैच्योर कंडीशन। सीड अंदर है तो इमैच्योर कंडीशन में उसे प्रोटेक्ट करेंगे। सीड्स आर सीड्स आर प्रोपगेशन ऑफ ऑर्गन्स, वो फिर से रेडिकल, लिन्यूल, कोटिलेडॉन वो बनाएंगे। Seeds and fruits develop a special device for their dispersal. सीड खुद से जा नहीं सकेगी, तो जैसे सीड के ऊपर थोड़े स्पाइन्स आ जाएंगे, या तो आपने ड्रमस्टिक देखा है, ड्रमस्टिक में विंग्स जैसा पार्ट दिखता है। तो फ्रूट डिस्पर्सल या सीड डिस्पर्सल के लिए वो खुद कुछ कैरेक्टर डिफरेंशिएशन दिखाएगी। सो देयर डिस्पर्सल एंड हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ तक ही लेते हैं, मुझे क्वेश्चन आंसर्स लेना है, कल टॉपिक जाएगा structural and physiological adaptive mechanism for the survival is called as a, that is dormancy। तो सिर्फ dormancy का टॉपिक हम कल लेंगे, कल चैप्टर कंप्लीट होगा। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ हाँ अभी आपको, आप लोग अनम्यूट करो या तो टाइप करो, कोई भी टॉपिक चलेगा। हाँ, इन मोनोकॉट मोस्टली radical is covered by which part during development of embryo? In monopod, textbook है तो textbook से देख के बोलो। In monopod, radical is covered by which part? Monopod में diagram देखो, हाँ that is coleorhiza. So automatically the single cotyledon of monopod is known as, the single cotyledon of monopod is known as, yes, unmute yourself and you need answer और टाइप करो, दैट इज कॉल्ड एज ए स्पूटेलम। साक्षी एंड शांभवी, बाकी सबको भी आंसर करना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्मिक सेल? हाँ यस, अनस स्पूटेलम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्मिक सेल? यस, वेरी गुड अभिनव एंड एवरीवन। हाँ बोलो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्मिक सेल? Yes, please. All of you have to give me the answer. Endospermic cell means what is present in that? Endosperm is present. The endosperm is developed from whom? Yes, बराबर है, right? Endosperm is developed from whom? Which cell convert into endosperm? हमें कौन से सेल से, नो सस्पेंसर तो अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आ गए ना हम लोग। एक सिंगल सेल हम जो यूज कर रहे हैं व्हिच इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। सस्पेंसर का काम तो उसे पुश करना रहेगा, तो एम्ब्रियोनल सेल से एम्ब्रियो बनेगा। मैंने क्वेश्चन पूछा विच सेल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, याद आ रहा है टीपीएन का फुल फॉर्म? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीपीएन? यस, कोशिश करो। हाँ यस, वेरी गुड, कोई कोशिश। फुल फॉर्म ऑफ टीपीएन, हाँ दैट इज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। और एन भी बोल रही हूँ ना मैं, तो न्यूक्लियस।
So from triploid primary endosperm nucleus, what is developed? Endosperm is developed. कौन develop हो रहा है? Endosperm. Okay. वैसे ही embryo is developed from. Okay. तो वैसे ही embryo is developed from. तो embryo कहाँ? Embryo is developed from which cell? वॉइस आ रहा है आपको? हाँ, zygote. Good. वॉइस आ रहा है सबको? Do you take my voice? Please give me a reply. All of you getting my voice? Embryo is developed from which cell? हाँ. Okay. थोड़ा hold कर. Now clear? Is it clear now? Is it clear now, students? Can you get my voice now? Seed is made up of 3 parts. What are the 3 parts of seed? Seed is made up of 3 parts. What are the 3 parts? Seed having 3 parts. What are the 3 parts? Yes, please. What are the 3 parts of seed? Outermost coat of seed is called as the Tesla. that is called as the seed coat. First one, outermost part is called as the seed coat. That seed coat is made up of 2 parts. What that 2 parts? First Testa part of the and seed is tegumen. seed coat. That part is called as the testa and tegumen. First part is over. Second part of seed is called as the first seed coat is over. The second part of seed is made up of 3 parts. In that first, all of you have given me the answer. That is seed coat. Now, second part of the seed is, what is the second part of seed? Part क्या आएगा? Can you get my voice? Endosperm. Second part is over. Now third part. What is the third part of seed? That is called as endosperm. उसे क्या नाम दिया है? Third part is called as a second is over. That is called as a endosperm. And third part is called as a embryo. Third part को नाम क्या दिया है? Embryo. So embryo is made up of main 3 parts. उसमें से 3 parts में से एक आंसर आया साक्षी का. One that is called as a cotyledon, and other 2 are remaining. I want other 2. What are other 2 parts? One that is radical, and other one is, yes please. Second one is called as a plumule. So please अब मुझे बताओ, seed is good. Seed is made up of how many parts? फिर से एक बार बताओ मुझे. Seed is made up of total 3 parts. Yes. 3 parts में से first outer part is called as a, yes, seed coat. Type me. Give typing or orally. Outer part is called as the seed coat. Second part is called as a, yes, endosperm. Good. And third part is called as a, third part is known as a embryo. Good. Now, seed coat is divided into any part? Is the seed coat is divided into any part? Seed coat को हमने किसी part में divide किया? Yes, 2 parts. What are the 2 parts? Testa and tegumen. Who is testa?
आउटर सीड कोट. हु इज टेस्टा? टेस्टा कौन है? आउटर सीड कोट. सो व्हाट इज टेगमेंट? टेगमेंट क्या हुआ?